Shikha, would you try, beta? Why? Only depends on the medium between the body. Yes, K only depends upon the medium between the two charged particles. And since there is nothing mentioned about the change in medium, so initially the medium between the two particles may be air, है ना? We can assume that there was air between the particles. So initially also it was air, and in the second case it was also air. So the K value remained constant in both the cases. So we took K as it is because there is nothing mentioned in the question about the medium between the two particles. Yes, we can read it again if we are have some doubts. So we can read it again. Yes, and there is nothing mentioned about the medium between the two particles. Yes, so just I am explaining it again. Just we will read the statement and then I will explain it. Two particles having charges q1 q2 when kept at a certain distance exert a force F on each other. If the distance between the two particles is reduced to half and the charge on each particle is doubled, then what will be the force between the particles? ठीक है, तो in the first case we are given two charges, 2 point charges q1 and q2. They are separated by some distance r, and they are exerting, maybe we are assuming that they are exerting a repulsive force, that is F. So according to Coulomb's law, we can write F is equal to K into Q1 Q2 upon R square. Now the in second case, the distance between the two particles is reduced to half and it becomes R by 2. And the charges, magnitude of the charges is doubled in both the cases. So magnitude of charge becomes 2 times of Q1 and 2 times of Q2. Now again applying the Coulomb's law, I can write F dash is equal to K into 2Q1 into 2Q2 upon R by 2 squared. Right? Solving it, we get 4 times of K Q1 Q2 upon R squared upon 2 squared. That becomes 4. And this new 4 goes into the numerator and it becomes 16 times of K Q1 Q2 upon R squared. On comparing the value of F dash and F, we can say that F dash is 16 times of F. So what happens to the force of attraction or repulsion between the two particles? It becomes 16 times of initial value. Yes, so we understood this problem, right? Any doubts, beta? ठीक है, okay. So going forward, समझ आया गायत्री बेटा? गायत्री, आयशा? अगर नहीं आया तो डाउट यहीं पे पूछो. सेकंड क्वेश्चन विल बिकम अ लिटिल बिट मोर ट्रिकियर, है ना? इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस थिंग, यू विल बी एबल टू सॉल्व द सेकंड वन आल्सो. ठीक है, ओके. मूविंग टू द सेकंड प्रॉब्लम. Solve it. I am launching a poll. Okay. Just answer your choice in the poll and then we will read out the question. Similarly we will do. हाँ? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे. ऐसे ही करते चले जाएंगे, हो जाएगा सब. ठीक है. आई एम लॉन्चिंग a poll for this. Everybody should participate in the poll, right? You try your best and answer it. I'm just adding another option, A, B, C, and E option, that I am not able to solve this. So you can always tick mark on that, right? So that's how we avoid marking a guess answer and we genuinely show our interest that I attempted it and I was not able to solve it.
First read out, read it twice and then try to understand what is being asked in the question. Particle of mass m, just read with me. If you are unable to understand it, just read with me, right? A particle of mass m carrying charge minus q1 is moving around a charge of plus q2 along a circular path of radius r. Find period of revolution of the charge minus q1, right? So there are two charges given in the question, beta. There is charge plus q2 which is situated at the center, right? So there is charge plus q2. This plus q2 charge is situated at the center. This is plus q2. And another charge minus q1 is revolving around this charge q2 in a circular path, right? So there is another charge which is minus q1. This charge, magnitude of this charge is minus q1, and this is revolving in a circular path around this plus q2 charge, right? So it is asking that period of revolution, any time taken by this charge minus q1 to complete one revolution around this plus q2 charge, right? So about this central charge, we have to find out what is the time taken by this charge q1 to complete one revolution around this q2 charge, right? So this is the problem. So can we do that, beta? Just think of it. How can we approach? Think of it. Then I will provide you a hint. Think of it. How we can solve it. In circular motion, velocity of the particle is always changing, and the acceleration which is responsible for changing the velocity direction of the velocity vector is called as which type of acceleration, beta? This velocity vector is changing at every point, yes? So which acceleration is responsible for the change in the direction of velocity vector? Which acceleration, beta? Centripetal acceleration. Yes? Centripetal acceleration. Yes. This centripetal acceleration is acting at the 90-degree to this velocity vector. Yes? So this velocity vector changes its direction at every point due to this centripetal acceleration, and which is acting to the at an angle of 90-degree to this velocity vector. Yes. This centripetal acceleration, as the name suggests, that it is center seeking. So it will pass through the center, and this centripetal acceleration is being provided by which force? Coulombic force, है ना? Because they are unlike in nature, and unlike charges attract or repel? बताओ. They? शिखा की आवाज कम आती है. शिखा के माइक में इशू है. So unlike charges attract each other. Attract. So this Q2 charge will attract the negative Q1 charge, and that Coulombic force of attraction will be responsible for this centripetal acceleration. And the centripetal acceleration changes the direction of velocity vector at every time stamp, and that's why this charge minus Q1 is revolving in a circular track. Okay, beta. अब what is the centripetal force? The centripetal force and the Coulombic force are same here, because centripetal force is providing centripetal acceleration, and since we know that these charges are attracting each other, so that centripetal force is nothing but Coulombic force of attraction, right? So we know the formula for centripetal force. What is that force, beta? F is equal to m omega square r, and this omega is the rotational velocity of this particle. कौन सा वाला का? Green color का particle about the central point. That is omega. And we know that omega is nothing but, omega को क्या बोलते हैं? Rotational velocity, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? Distance upon time. तो rotational distance, that is 2 pi. In completing one complete circle, we circumpass 2 pi. We circumpass 2 pi radian angle. And what is the time taken, beta? The time taken for doing that is called as time period t. We have to find out this t value. Yes. So this t has to be found out. And we should find out omega first. And
then we can do it. What is the mass of the particle given? What is the mass of the particle given, beta? M. M. Yes, a particle of mass m. So a particle of mass m is given. So this is m is given, right? Let the distance be r only. So we can assume that they are separated by r, and that is also the radius of rotation. So we can find out omega first, and then we will find out t value. Solve karo. This force is called as centripetal force. ठीक है, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है आपको? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस. So if we apply Coulomb's law, what will be the force value? F is equal to K times of Q1. Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? माइनस Q1. ठीक है, तो either we can calculate it magnitude wise only. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल देने, तो डायरेक्शन छोड़ो. K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एंड व्हाट इज K बेटा? क्या होता है K? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. Yes. So we have to equate both of these forces, the centripetal force and Coulombic force. क्यों? क्योंकि both are same. ठीक है, इक्वेट करो पहले दोनों फोर्सेस को, आपको ओमेगा मिलेगा. ओमेगा को 2 π/t सब्सटीट्यूट करो, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट which among these four choices is the correct answer. Have you understood till now what I have taught you? तो मैंने आपको बताया, वो समझ आया कि क्या कर रहे हैं हम? गायत्री, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? आयशा माँ, हैव यू अंडरस्टूड इट? Yes, sir. ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड आउट. सबसे पहले क्या करोगे? ट्राई टू फाइंड आउट ओमेगा. इक्वेट बोथ ऑफ दीज इक्वेशन. एम ओमेगा स्क्वायर आर शुड बी इक्वेटेड टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? तो वहां से आपको ओमेगा मिलेगा पहले. देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इनटू 2 π/t, देन फाइंड t की वैल्यू. ठीक है, प्रॉब्लम आपको समझाया, आप अटेम्प्टेड, एंड आंसर योर चॉइस इन द पोल, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपने सही किया कि नहीं किया. एक स्टूडेंट एब्सेंट है ना, क्या नाम है उनका बेटा? आपको याद हो तो. 2 बच्चे एब्सेंट हैं इस क्लास में. शिखा, मिसबा, आई नो, गायत्री, आई नो, ईशा, आई नो. इसके अलावा कौन था यार? महालक्ष्मी, आई नो, महालक्ष्मी इज एब्सेंट. और कौन एब्सेंट है? एक और एब्सेंट है. लड़का है ना, क्या नाम है यार उसका? शिखा, आपको नाम याद है उनका? स्टूडेंट है ना, साहिल नहीं है. साहिल नहीं है ना अपनी क्लास में, अपने में कोई और है यार, उसका नाम तुषार. कनिष्क है ना, तनिष्क. यस. Yes, sir. हाँ, तनिष्क एब्सेंट है. एक बच्चा अदनान अहमद भी आया था एक दिन, एक ही दिन आया बस, फिर चला गया. कोई बात नहीं, जो आएंगे आएंगे, जाने वाले जाएंगे, जो रुके रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे.
Misbah, have you solved it, beta? No, sir. Can you explain? डाउट है? Sir, can you explain? अच्छा बताएंगे, एक्सप्लेन। ए ऑप्शन किसने आंसर किया? किन किन बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया? सिखा दें, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है मिसबा, क्या समझ नहीं आया आपको? गायत्री, आयशा, सब लोग डाउट पूछो। एक्चुअली यहाँ पे सर्कुलर मोशन यूज हो रहा है ना, तो पूछ सकते हैं हम। मिसबा, आप मेरे को बताओ कहाँ तक आपको समझ आया, अनम्यूट करके बताओ एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। मिसबा, बताओ कहाँ तक समझ आया? चलो एक बार फिर से समझ लो। अ पार्टिकल ऑफ मास कैरिंग चार्ज माइनस Q1, तो माइनस Q1 चार्ज का एक पार्टिकल है, ठीक है। इट इज मूविंग अराउंड अ चार्ज ऑफ प्लस Q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। चार्ज Q2 के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज r, ठीक है। तो मैंने रेडियस ऐसे ड्रॉ किया, तो अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसको रेडियस के फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कंफ्यूजिंग कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो it is moving in a circular path of radius r, so radius of this path is r, ठीक है। then find the period of revolution of the charge minus q1, माइनस चार्ज जो q माइनस Q1 का जो चार्ज है उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वन सर्कल अबाउट दिस चार्ज Q2। जो Q1 है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अबाउट Q2, Q2 के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है Q2 के चारों तरफ। अब टू कंप्लीट वन सर्कल कितना टाइम लगेगा, उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सिंस दीज पार्टिकल्स आर दिस पार्टिकल Q1 इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, तो क्या होगा? इसका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन विल चेंज एट एवरी पॉइंट, यस। And that change in velocity vector is due to this centripetal acceleration, AC. This centripetal acceleration is provided by force of attraction between these two point charges, and that force of attraction is nothing but kq1 q2 upon r square। yes beta, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है जिसकी वजह से आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिलता है, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r, and that should be equated to kq1 q2 upon r square, so that we can find out omega. First we will find out value of omega, then we will substitute omega is equal to 2 pi by t. We will substitute value of omega in this formula. Omega is nothing but rotational velocity, ठीक है। रोटेशनल वेलोसिटी होता है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट टू कंप्लीट वन 360 डिग्री, what is the value? 2 pi, SI unit is radians, so 2 pi angle has to be circumpassed to complete one revolution, yes, and the time taken is t, time period of revolution, yes। तो displacement upon time is nothing but velocity। तो circular terms में rotational velocity is equal to angle upon time period, ठीक है। तो 2 pi by t होता है, इसलिए आप t निकालना है हमें। तो first we will try to find out value of omega by equating m omega square r by kq1 q2 upon r square। तो अभी मैं इसको equate कर रहा हूँ, ठीक है। I will equate this, I will just directly write the value of omega। omega is equal to, आपको ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ k q1 q2 अपॉन m r q, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। I will substitute omega is equal to 2 pi by t. I will equate it to 2 pi by t, and then I will try to find out value of t. So on substituting the value, I will take t to the left side and omega in the denominator. Then it will become under root of but it will become 2 pi, और t इधर चला गया तो it will become t to the left,
substitute it, yes, 2 pi divided by this, and we have to erase something, you know, so that it becomes, I will erase it on this side. We will substitute the value of omega, that is like under root m r cube divided by k q1 q2, ठीक है, इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई। दोनों को न्यूमरेटर ले लिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब वी विल टेक t इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब। वी विल सब्सटीट्यूट k वैल्यू एज 1/4 pi epsilon naught q1 q2, 1/4 pi epsilon naught, so q1 q2 will remain in denominator, 4 pi epsilon naught goes to numerator, yes, 2 pi should go inside this bracket, so it will be squared, yes, so under root 2 pi squared is 4 pi square, and then this 4 will come with 4 to 16 pi squared, and एक pi अंदर था तो pi cube epsilon naught m r cube divided by q1 q2, yes, so that becomes option A. तो पहले आपको प्रॉब्लम समझ आएगा, तो उसके बाद इट इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन, है ना, जस्ट रीड इट वंस मोर। गायत्री, आयशा माँ, आपको समझ आया? शुड आई आस्क यू क्या क्या किया गया? आयशा माँ, ट्राई इट, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ वी डिड इट? आयशा माँ, जस्ट ट्राई इट बेटा, जितना आपको समझ आया उतना बता दो। गायत्री, आप ट्राई करना चाहोगे? विल यू ट्राई? Sir, in question they say that the in the आप वॉइस ब्रेक कर रही है बेटा, ब्रेक कर रही है गायत्री, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, आपका शायद इंटरनेट है। मेरी आवाज भी आपके पास ब्रेक होके आ रही है क्या? तो सही करो बच्चे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि माय वॉइस इज आल्सो ब्रेकिंग और इज इट ओके? Sometimes it's breaking. Sometimes it breaks, okay. Just let me know when you have issues with audio, we can correct it, yes. There is no internet issue here, now it is okay. But when it is breaking, just let me know. I think it is better now. Yes? Okay. ठीक है, we can correct it. If you highlight it timely, we can definitely correct it then and there itself. No issues, beta. ठीक है. Let's move to the next question. Right? Let's try to solve the question number 3. Right? So this question incorporates a formula that is due to buoyant force. आपको buoyant force के बारे में बताना है, तो buoyant force is nothing but the rho gv, है ना? Rho is the density difference between the two particles, and g is the acceleration due to gravity, and v is the volume, है ना? We will try to solve this question. चलो।
मिसबा आ गया आपका आंसर बेटा? Oh, sir, can you repeat which formula do you have? Okay, I will let you know. Just देखो बेटा, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सब लोग सुनो मेरी बात. कौन छोड़ गया भाई मीटिंग को? गायत्री हैज लेफ्ट द मीटिंग. वाह, शाबाश. शी ज्वाइंड अगेन. चलो एटलीस्ट शी ज्वाइंड अगेन. हाँ, टू आइडेंटिकल चार्ज spheres are suspended by strings of equal length. Yes, each string makes an angle theta with the vertical. When suspended in a liquid of density, अभी देखो पहला यहाँ तक स्टेटमेंट खत्म हो गया. They are suspended and makes an angle theta with the vertical. So I will draw the diagram how this thing looks like. So there is some rigid support. There are two strings of equal length. On this spring, two identical charged particles are there. ठीक है, there are two identical charged particles. There are two identical charged particles. Yes बेटा. अब they are, since they are identical, तो like charges repel or attract बेटा? Repel. Repel. Like charges repel each other. तो ये वर्टिकल के साथ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. क्वेश्चन में दिया है, राइट? सिंस दे आर लाइक इन नेचर, तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे. तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो दे विल रिपेल ईच अदर. यस, सो देयर इज नेट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल. यस. नाउ इन द सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस. इन द सेकंड केस पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में. when suspended in the liquid of density this, the angle remains the same when this setup of these 2 point charges is suspended in the liquid, right? So what we will do beta, we will draw it again and suspend it in the liquid. So this is the rigid support. These are two identical strings of equal length, and these are these 2 point charges. ठीक है. Now in the second case, we have to suspend them in a liquid. ठीक है, तो this is suspended in some form of liquid. The density of the liquid is given as sigma, and that is equal to 0.8. Sigma is given as 0.8 grams per centimeter cube, right? Density of the particles, density of the material of spheres, density of material of sphere is given as rho is equal to 1.6 grams per centimeter cube. ठीक है. अब बोल रहा है even after when they are submerged in the liquid, the angle remains same. So this angle remains theta only. तो पहले दोनों एंगल थीटा थे, बाद में भी दोनों एंगल थीटा ही रहे. तो अब पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड. इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द एप्सिलॉन वैल्यू. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट एप्सिलॉन फॉर दिस लिक्विड. यस, और यू कैन फाइंड आउट के वैल्यू. के इज द कांस्टेंट दैट गवर्न्स द वैल्यू ऑफ लिक्विड, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. अभी समझ आया प्रॉब्लम? Yes, sir. So in the second case, what will happen beta? In the second case, when they are submerged in the liquid, there is a force, upthrust force, है ना, उसको मैं बोल देता हूँ F upthrust, and that is nothing but density difference rho minus sigma into g into volume of the particle, है ना. That is called as upthrust force. तो density difference कितना है? 1.6 minus 0.8. G is value of acceleration due to gravity, V is the volume of the particle. ठीक है, वो आप देखो कैसे करोगे. Just think of it. Try to draw the free body diagram of either of the charge, क्योंकि प्रॉब्लम सिमेट्रिक है, दोनों साइड सेम ही पार्टिकल है, सेम फोर्स है. तो वी कैन draw the free body diagram of one of the forces, one of the forces on the charge, one of charge particles. ठीक है, we have to draw the free body diagram. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दिस वन, है ना, जब आपका नॉर्मल केस था उसमें पहले वाले लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल पे फ्री बॉडी डायग्राम वी विल बी ड्राइंग. देयर इज अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड दैट इज नथिंग बट
mg, mass of the particle, into g, weight of, है ना, mg. There is a repulsive force between these 2 point charges. So on the left one it will be acting on the left side, on the right one it will be acting on the right side. So this is nothing but Coulombic force. है? उसके अलावा there is third force which is along this string, and that is nothing but the tension in the string. Yes beta. There are two component. देखो, Coulombic force is acting along minus I cap direction. mg is acting along minus j cap direction, but T is acting at an angle theta with the vertical. T is acting at an angle theta with the vertical. Why? Because of corresponding angles. So this angle, since this is theta, so the value of the vertical, it will be theta. We can resolve this T into two components. One is T cos theta, that is vertical, T cos theta. Another one is along Sin theta. T sin theta, that is along I cap direction, that is T sin theta. Since the particles are in equilibrium, can we write the equation for horizontal and vertical equilibrium? और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? कूलाम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू T sin theta एंड mg इज इक्वल टू T cos theta. ठीक है, mg इज इक्वल टू T cos theta बेटा. ठीक है, क्या यहाँ से मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ? कैन आई फाइंड आउट टेंजेंट थीटा इन दोनों इक्वेशन से? tan थीटा इज इक्वल टू, देखो, T sin theta डिवाइडेड बाई T cos theta इज नथिंग बट टेंजेंट थीटा. यस बेटा. और उसकी वैल्यू क्या आएगी? T sin theta इज F एंड F by mg. तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू F by mg. अब देखो, मैंने थीटा क्यों निकाला बेटा? मैंने थीटा क्यों निकाला प्रॉब्लम में, ये समझो आप. वाई डिड आई कैलकुलेट टेंजेंट थीटा? क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि एक ही चीज है जो कांस्टेंट है दोनों केसेस में. क्या है वो? क्या है बेटा? देखो, द एंगल रिमेन्स सेम. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट केस में tan थीटा निकाल लिया. अब सेकंड केस में आप यही प्रॉब्लम को इसी तरीके से FBD ड्रॉ करो, ये लेफ्ट वाले बॉल पे, लेफ्ट वाले चार्ज पे, बट उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फोर्सेस, देयर इज अ वर्टिकल फोर्स, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द चार्ज पार्टिकल. ठीक है, तो उसमें आपको देन यू हैव टू कैलकुलेट टेंजेंट थीटा अगेन. Then we can equate the equations of tangent theta in both the cases since the theta value is same, and then we will be able to find out the electric constant. करो, अब आगे का प्रॉब्लम खुद से करो. This is a relatively tough problem, but हम इसको करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ आएंगी. ट्राई करो, तो I will explain it. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, है ना? सब लोग ट्राई करेंगे इसको. हाँ जी, समझ आया प्रॉब्लम? आपको FBD ड्रॉ करना है. जो राइट साइड सेकंड केस में लेफ्ट साइड वाला चार्ज है, उसका FBD ड्रॉ करना है हमें. आप भी करिए, मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, है ना? F F is equal to T cos theta.
एफ अप इज इक्वल टू टी कॉस थीटा नहीं आएगा बेटा, रुक जाओ अभी अभी देखो देखते हैं. लेट्स ड्रॉ द एफ बी डी ऑन दिस चार्ट, है ना. क्या करेंगे, फर्स्ट फोर्स वी नो इट, एम जी तो होगा ही. यस बेटा, एम जी डाउनवर्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसको हम क्या बोल दें बेटा, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे सेकंड केस में एफ डैश बोल देते हैं ना. तो फोर्स विल चेंज सिंस द मीडियम हैज चेंज बिटवीन द पार्टिकल्स, तो फोर्स विल चेंज, है ना. तो इसको बोल दिया कि ये एफ डैश फोर्स है, रिपल्सिव है, बट नेचर में चार्जेस का नेचर अनलाइक सेम है. सिंस द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर तो फोर्स तो रिपल्सिव ही रहेगा, बट बीच में मीडियम बदल गया. अब सिंस द मीडियम हैज चेंज तो फोर्स हैज चेंज, तो अब इसको एफ नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इट एज एफ डैश, है ना. तो फर्स्ट केस में एफ था, सेकंड में एफ डैश हो गया, राइट. ओके, we can write tension in the string. Yes, so it will also be different, but we can write it as T dash. Yes, there is a force acting vertically upward, and that is upthrust force beta, है ना. F upthrust, F upthrust. Yes, now looking at the problem, can we write that in the same way, since the theta has remained the same, the t dash can be resolved in two components. Well, one will be t dash sine theta and one will be t dash cos theta. ठीक है बेटा, तो वर्टिकली जो होगा वो होगा आपका t dash cos theta हो जाएगा, लिख देते हैं इसको t dash cos theta, और हॉरिजॉन्टली t dash sin theta. ठीक है बेटा. अब देखो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, है ना. तो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एफ डैश लग रहा है और एक टी डैश साइन थीटा लग रहा है. तो मुझे क्या पता चला कि बेटा एफ डैश इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा. ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहे हैं और एक डाउनवर्ड लग रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्योंकि ये पार्टिकल मूव तो कर नहीं रहा है, तो एम जी किस किस के बराबर हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एक तो टी डैश कॉस थीटा और दूसरा एफ अपथ्रस्ट, है ना. देखो एफ अपथ्रस्ट और टी डैश कॉस थीटा मिलकर एम जी को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ना एम जी इज इक्वल टू टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ अपथ्रस्ट. ठीक है, अब यहां से मुझे क्या करना है, माई टारगेट इज टू कैलकुलेट टेंजेंट थीटा, है ना बेटा, क्योंकि टेंजेंट थीटा मुझे लेफ्ट साइड से पता है, यहाँ भी थीटा सेम है, तो फिर इक्वेट करके आई कैन डू द कैलकुलेशंस. ठीक है, और आप एफ अपथ्रस्ट का मैंने आपको बताया कि एफ अपथ्रस्ट क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस इनटू जी इनटू वी. अब वॉल्यूम निकालना एक चैलेंज है. हाउ कैन वी फाइंड आउट वॉल्यूम बेटा, हाउ कैन वी फाइंड आउट वॉल्यूम. देखो एफ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी, और रो क्या है, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, और रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड क्या है हमारे पास 1.6 माइनस 0.8, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप एम जी एम बाय रो इज नथिंग बट वॉल्यूम, और इनटू जी. तो एम जी जो फोर्स था, एम जी फोर्स को आप रो से डिवाइड कर दो, है ना, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड से, तो आपको मिल जाएगा. देखो एम बाय रो क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम, और जी आपका एज इट इज आ गया. तो यहाँ से आपको मिल गया, क्या मिला बेटा, यहाँ से आपको मिला एफ अपथ्रस्ट इज नथिंग बट 1.6 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.8, और रो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1.6, तो ये लिख लिया इनटू एम जी. तो ये आपका कैलकुलेट करने पे आया एम जी बाय 2. तो एफ अपथ्रस्ट आपका क्या आ गया बेटा, एम जी बाय 2 आया. Yes, sir. एम जी बाई 2 नहीं आया समझ तो पूछ लो बेटा यहाँ पे. दिस एफ अपथ्रस्ट इज एम जी बाई 2. अब देखो इसमें वैल्यू हम लोगों को सब्सटीट्यूट करनी है, वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. तो एफ अपथ्रस्ट की जगह कैन आई राइट एम जी बाई 2, तो यहाँ इट विल बिकम एम जी इज इक्वल टू टी डैश कॉस थीटा प्लस एम जी बाई 2. अब इस एम जी बाई 2 को आई विल टेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से मुझे प्रॉब्लम मिलेगा, क्या मिलेगा, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई 2. एम जी था, एम जी बाई 2 लेफ्ट में गया तो नेगेटिव हो गया, एम जी माइनस एम जी बाई 2 बिकम्स एम जी बाई 2. यस, तो टी डैश कॉस थीटा इज एम जी बाई 2 एंड टी डैश साइन थीटा इज एफ डैश.
तो अब इन दोनों इक्वेशन से, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इनसे आई विल कैलकुलेट टेंजेंट थीटा। टेन थीटा कैसे निकलेगा? टी डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी डैश कॉस थीटा। तो क्या आएगा इसका वैल्यू? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टेन थीटा बेटा? बताओ। एफ डैश बाय एम जी बाई टू। ठीक है, तो एफ डैश डिवाइडेड बाय एम जी बाय टू। अब ये टू न्यूमरेटर में चला जाएगा तो टू एफ डैश डिवाइडेड बाय एम जी। तो दिस इज टेंजेंट थीटा। अब मुझे टेन थीटा की दो इक्वेशन मिल गई, एक तो लेफ्ट में मिली थी और एक यहाँ पे मिल गई। कैन आई इक्वेट दिस? सिंस क्वेश्चन सेज कि थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, तो थीटा सेम रह रहा है, तो क्या मैं इक्वेट कर दूं? एफ बाई एम जी शुड बी इक्वल टू टू एफ डैश बाई एम जी। कर दूं इक्वेट बेटा? तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने से मुझे क्या मिलेगा? एफ बाई एम जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ डैश डिवाइडेड बाई एम जी। तो यहां से क्या मिला? एफ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ डैश, टू टाइम्स ऑफ एफ डैश। तो आपका जो क्या क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड निकालने के लिए आप जब फाइंड आउट करोगे तो इसमें वैल्यू रखो। क्या करना है हमें? एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। देखो क्या करेंगे, अब इसको इक्वेट कर जगह कम पड़ रहा है, इधर लिख देते हैं। देखो एफ जो था पहला वाला, उसमें क्या लिखते हैं? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि इनके बीच में कोई मीडियम नहीं था तो एप्सिलॉन नोट रख लिया। क्यू वन क्यू टू दोनों चार्जेस हैं, अपॉन आर स्क्वायर। सेपरेशन भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सेपरेशन अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो बेटा क्या दूरी बदलेगी? बदलेगी इनकी दूरी भी नहीं बदलेगी, है ना। ये भी आर रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा, यस। तो ये इसको मैंने लिख दिया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ डैश। एफ डैश क्या हुआ बेटा? वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन। एप्साइलन है ना, एप्साइलन नॉट नहीं है, ये एप्साइलन है। ठीक है, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों की दूरी सेम थी। अब जो चीजें कट रही है उनको काट देंगे और इसको लिखते टाइम क्या लिखा जाएगा? वन अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू टू अपॉन एप्साइलन। बाकी देखो सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एप्साइलन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एप्साइलन नॉट। ठीक है, तो दिस इज आवर डाइलेक्ट्रिक, ये जो जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज टू। क्यों? क्योंकि आपका एप्साइलन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू सम कांस्टेंट, तो दैट इज टू। तो इसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या आया बेटा? टू। या प्रॉब्लम को समझो आप पूरे को, एक बार खुद से पढ़ो और दोनों केसेस को समझो, जो जिस तरीके से हमने सॉल्व किया वो देखो। डाउट है तो डाउट पूछो। ठीक है, एफ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ डैश अगर समझ आ गया है, उसके बाद का अगर नहीं भी आया, ये एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, सब क्या है, तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक समझ आ गया तो ठीक है, उसके बाद हम वो देखेंगे अभी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, वो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस। बट एफ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ डैश अगर आपको समझ आ गया है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। यस, आ गया। शुड वी मूव फॉरवर्ड बेटा? Yes, sir. बस ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम था ना, ये मस्त था ना क्वेश्चन, मजा आया? ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, इजी करते हैं, इजियर। A charged particle Q1 at position this, the electrostatic force on another charged particle Q2 at this is। तो यहाँ पे आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो आपको कुछ नहीं करना, यू टू फाइंड आउट द आर वैल्यू, है ना। फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज है Q1, सेकंड का Q2 है, एंड दे आर प्लेस्ड एट सम 2 पॉइंट्स। तो आपको पहले आर निकालना है, आर वेक्टर, एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, करो, इजी है, बहुत इजी है, पोल में आंसर करेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट आफ्टर इवन आफ्टर ट्राइंग योर बेस्ट, यू शुड ऑप्ट फॉर द ऑप्शन नंबर 5 दैट सेज कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, है ना, कर लेना। क्लास के बाद एक गुड न्यूज़ दूंगा मैं तुम्हें, मजा आएगा सुन के।
मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना मत करियो श्रृंगार नजर तो है तिया पे मन मोरा हैंड रेज करो जिनका ये क्वेश्चन हो गया बेटा किसने आंसर किया अभी ठीक है शाबाश आपका आंसर ठीक है बेटा है ना नहीं ठीक नहीं है नहीं है ठीक नहीं है चेंज करो इसको ट्राई टू री आपने कुछ गलती किया है शिखा आपका गलत हुआ है थोड़ा सा ट्राई करो एक बार री एवेल्युएट कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते टाइम गड़बड़ किया या फॉर्मूला गलत यूज़ किया आई बिलीव Yes, sir. Option B होगा. Option incorrect. हाँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर है ना नीचे क्यूब आता है बाकी लोग भी करो यार आयशा माँ क्वेश्चन समझ आया बेटा गायत्री आपको आया गायत्री बेटा क्वेश्चन समझ आया Sir, I नहीं have आया doubt. हाँ बोलो Sir, बोलो यस यस आस्क sir, I solved the RB by RA, sir. But in how I get, but I didn't get that 56 into root of 40 base. I was confused in that place. okay you tried your which one is your right answer according to you which one is the right one Sir, I get a 2 I cap into J cap 3 cap, sir. But yeah in denominator, I didn't get answers. okay I was when I will confused. be solving we will get it huh? We will get it yes it will be resolved so let's start बेटा है ना अब आप सबने ट्राई कर लिया let's start it a charged particle q1 is at position 2 minus 1 3 the electrostatic force on another charged particle q2 at this point is ठीक है तो first we will place q2 because q2 is at origin so it is at point which is 0 comma 0 comma 0 origin yeah option b is the right answer beta option b is the right answer to this problem ठीक है so this charge q2 is placed at origin yes q1 is placed at x2 y minus 1 and z3 so maybe x is 2 y is minus 1 so it will be somewhere here so it is 2 comma minus 1 comma 3 and this is charge q1 yes beta okay the electrostatic force on another charged particle q2 yes so we have to find out force applied on q2 by q1 we have to find out which one f on 2 by 1 f21 we have to find out right so this is the value that we need to find out
applied on charged particle q2, the electrostatic force on another charged particle q2, on another particle to q2 matlab applied on q2 by charge q1. So f21 have to be found out. Yes, we will write the formula for Coulomb's law in vector form. F21 is equal to minus k q1 q2 upon r21 cube into vector r21 into vector r21. यस बेटा, ये नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 21 इज पॉइंटिंग ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and pointing at 2. So r21 is nothing but it is pointing in the direction opposite to the force. So that's why minus sign. We have to find out r21. So r21 displacement vector r21 is equal to coordinates of final point, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, and z2 minus z1 k cap. So we will try it. x2 is 0 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap and z2 minus z1 k cap. ठीक है, तो यहाँ से r21 वेक्टर becomes minus 2 I cap plus j cap and minus 3 k cap. Yes beta, we will substitute this. We will also try to find out the magnitude of r21 here only. Magnitude of r21 is nothing but under root of x square plus y square plus z square. So x is minus 2 squared plus 1 square plus minus 3 squared. ठीक है, what will be the value beta? Under root of 14. ठीक है, r21 vector का magnitude is under root 14. Now we will substitute all these values, and what we are trying to find out, force applied on this charge q2 by q1. Yes, so q2 by q1, since both the charges are positive, naturally it will be repulsive, but we don't know about the magnitude. We will let it that this way only, or otherwise we can draw it like this is repulsive, assuming that q1 and q2 both are positive. Since there is no negative sign in both of the charges, so we will assume they are repelling each other. Okay, so we will substitute the values beta. What is the k value? K is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught. q1 q2, these are the magnitude of charges. r21 is nothing but under root of 14 and cube of under root 14. Yes, and r21 vector has to be multiplied, which is nothing but minus 2 I cap plus j cap and minus 3 k cap. Now what I will do, I will multiply this minus sign with the vector, and it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by 14 squared. under root 14 का square 14 होता है, और third one under root 14. So under root 14 cube becomes 14 root 14, and this negative sign multiplied by this vector becomes 2 I cap minus j cap plus 3 k cap. Yes, then solving it, it becomes 1 upon 56 pi epsilon naught, or we can do it like that only, 1 upon 56 root 14 pi epsilon naught q1 q2 into 2 I cap minus j cap plus 3 k cap. ठीक है, what we did, we just calculated the value of r vector, magnitude of r vector, and then substituted it. So then option B is the right answer. Aisha Ma Gayatri, have you understood it now beta? Yes, sir. Yes. ठीक है, मिसबा आ गया था आपका तो आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5. 2 point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other. The value of distance r at which they experience force 4F when placed in medium of dielectric constant 16 is.
ठीक है, 2 बार फॉर्मूला लगाओ कूलम्स लॉ एंड गिव मी द राइट आंसर. यू हैव टू आंसर इट इन पोल्स. जस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बेटा, अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ेंगे हम. एक ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे. जैसे देखो मैं पढ़ता हूँ ना, 2 point charges placed at a distance r in air exerts a force f. इसी को 2 बार पढ़ो. 2 point charges placed at a distance r in air exerts a force f. ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो. ये 2 point charges हैं, दे आर प्लेस्ड एट a distance r and they are exerting force f. यस. फिर क्या बोला, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आर एट विच दे एक्सपीरियंस फोर्स 4 times ऑफ एफ. तो दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करो, उसमें फोर्स बिकम्स 4 times ऑफ एफ व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16. दूसरा इक्वेशन, दोबारा फॉर्मूला एंड देन गिव मी द राइट आंसर. हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम बेटा? Yes, Have you- sir. है ना, तो अभी सॉल्व करो फिर इसको, समझ आ गया तो. देखो, पूरा फोकस से अगर करते रहोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में हमारी स्पीड कम रहे, बट वी विल डू इट वन डे, है ना. वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. बोलते हैं ना ऐसे, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी एक दिन. वैसे वन डे वी शैल ओवरकम. We shall be able to solve each and every problems in a minimum of the time. आ गया? Yes, sir. ठीक है, क्या आंसर आया बेटा? सी या बी? Option C. सीखा आपका क्या है बी? Sir, option B. सी इज द राइट आंसर. देखा, मिसबा ने ठीक किया इस बार. ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक एक करके. 2 point charges placed at a distance r in air at force f. ठीक है, तो 2 point charges आर देयर. पॉइंट बन क्यों नहीं रहा है भाई, बन जा. अरे एलिप्स बना दिया इसने. 2 point charges
placed in air at a separation r exerts a force F, ठीक है, इनके बीच में फोर्स कितना है F, is the force F. Okay, the value of distance r, capital R, at which they experience a force of 4F. अभी चार्जेस हमारे सेम है, ठीक है बेटा, ये मान लो Q1 था, ये Q1 था, आइडेंटिकली बोल लेते हैं ना, तो Q1 भी नहीं, छोड़ो, हम इसको बोल देते हैं 2 पॉइंट चार्जेस, ये Q, ये भी Q, सेम है, चार्जेस चेंज नहीं हुए, बट इनके बीच में फोर्स चेंज हो गया, फोर्स बिकम्स 4F, ठीक है बेटा, फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, ठीक। अब हमें बताना है कि देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन देम एंड दैट इज गिवन एज कैपिटल आर, ठीक है, एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिकम्स 16 टाइम्स। तो यहाँ पे के क्या था बेटा, यहाँ पे मान लो यहाँ के 1 था, ठीक है, और इधर के क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है, या इसको के टर्म्स में सीधा ले सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो, यू कैन से दैट कि एप्सिलॉन जो है वो आपका 16 टाइम्स हो गया है, एप्सिलॉन जो वैल्यू है दैट बिकम्स 16 टाइम्स। तो एक्चुअली क्या गिवन है क्वेश्चन में दिया है कि एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, के टर्म्स में लोगे तो उल्टा आ जाएगा, आई थिंक शिखा ने वैसे ही करके किया है। क्वेश्चन में दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, वो आपका है 16, ठीक है। अरे एप्सिलॉन आर होता क्या है ये देख लो पहले, एप्सिलॉन आर होता क्या है, एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, ठीक है, जो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो जो आप एप्सिलॉन फॉर्मूला में रखोगे, अभी देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखो आप। फर्स्ट केस में अगर मैं कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लगाऊं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 तो दोनों बन के Q स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड केस में फॉर्मूला लगाऊं बेटा, तो कूलम्स फोर्स का, तो F, इसको बोला F डैश बोल लेते हैं, दैट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ F, और ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये मीडियम आ गया इनके बीच में, देयर इज सम मीडियम इन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहे, हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं, तो एप्सिलॉन Q1 Q2 ये Q स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल R बिकॉज ये चेंज हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें गिवन है वैल्यू एप्सिलॉन R की जो दे रखी है 16, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस एप्सिलॉन को रिप्लेस करूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इट बिकम्स दिस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको 16 दे रखी है प्रॉब्लम में, तो इसको मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसको मैं इक्वल्स टू लिख दूंगा 1/4 पाई और 16 मिलके क्या हो गया, कितना होगा 64 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये F डैश है बेटा, दिस इज F डैश, राइट। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या करना है मुझे, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस R, है ना, तो मुझे R, कैपिटल R फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज F डैश एंड दैट इज 4 टाइम्स ऑफ F, तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 टाइम्स ऑफ F यानी कि 4F क्या होगा यहाँ से बेटा, 4F होगा 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये है 1/64 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर, सॉरी ये भी स्क्वायर ही आएगा ना, Q स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है आपका, ये 4 से 4 कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट से पाई एप्सिलॉन नॉट गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर गया, तो यहाँ से अभी देखो आप, यहाँ से मुझे मिल रहा है कि यहाँ से मुझे मिल रहा है 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64 R स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इक्वेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 कैपिटल R स्क्वायर, यस। और इसको सॉल्व करूँगा तो कैपिटल R बिकम्स R by 8,
देखो सॉल्व करके देख लो, r/8 आएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन आल्सो। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। गायत्री, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? शिखा, आयशा Yes, माँ, sir. Yes, sir. शिखा आपको समझ आ गया ना? ठीक है, शिखा ने तो थोड़ा सिली मिस्टेक किया था आई बिलीव। आयशा माँ, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? आयशा माँ, Yes, sir. ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई टू सॉल्व इट। 2 point charges of same magnitude and opposite sign are fixed at points A and B. A third small point charge is to be balanced at point P by the electrostatic force due to these 2 point charges. इसको पढ़ो एक बार, 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है। और जो भी आपको लगे ना इनिशियली, जो आंसर आपको फील हो रहा है वो ट्राई टू आंसर इट इन पोल्स, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। इस बार जस्ट यू आंसर इट योर चॉइस इन द पोल्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। इस बार आंसर कर दिया, बट इस बार आंसर गलत है बेटा। देखो और सोचो अभी इसके बारे में। डोंट डोंट फील दैट कि अभी जो आपने आंसर किया वो सही है। जस्ट थिंक मोर अबाउट द प्रॉब्लम, है ना, और सोचो एंड आई विल एक्सप्लेन। बाकी सब लोग भी आंसर करो। हाँ मिसबा, Option A. ऑप्शन ए, रुको देखते हैं अभी। शिखा, Sir, option C. सी, चलो सी को भी देखते हैं। आयशा माँ, गायत्री आप भी आंसर करो बेटा। Sir, option A. आयशा माँ, आयशा माँ, Don't know, sir. यू डोंट नो, ओके। चलो लेट्स first read the problem. 2 point charges of same magnitude and opposite sign are fixed at a point A and B. So they are of opposite sign beta, right? One is plus q and another one is minus q. Okay. A third small charge is to be balanced at point P by the electrostatic force due to these two charges. ठीक है, तो हमें एक थर्ड पॉइंट चार्ज जो है वो बैलेंस करना है एट सम पॉइंट P ड्यू टू दीज टू चार्जेस। द पॉइंट P, वो पॉइंट P कहाँ पर होगा? लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, पहला ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ऑप्शन सी लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम बेटा। पहले प्रॉब्लम आपको ऊपर दिख रहा है। आई विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट एंड देन वी विल सी व्हाट इट, हाउ इट डज इट हैपेंस। तो प्लस क्यू, ठीक है बेटा, यहाँ पे
minus q. They are at point A and B. ठीक है बेटा, तो this is point A, this is point B. Let's draw these line further. I am drawing another line that is perpendicular to this. ठीक है, that is perpendicular bisector. Now what does option A says? We have to place a third small charge and that has to be balanced. Yes, that charge has to be balanced. ठीक है, so what can be the possible values of that charge? Either it can be positive or it can be negative. Negative. So let's start with a positive charge. I will place a positive charge at this midpoint. What will happen? The right charge, the minus q charge will attract this charge. Yes, beta. Yes, sir. And plus q charge will repel this positive charge. भाई plus q charge है, this positive q charge will repel it and minus q charge will attract it. So what will happen to this charge? It will move to the right. Is it balanced or is it unbalanced when placed at center point? Unbalanced. Unbalanced. सीखा unbalanced? Yes. Yes, sir. तो क्या होगा? Ultimately it will go and stick to this charge. यहाँ पे stick कर जाएगा. So it is unbalanced. Okay. Suppose if it was a negative charge. तो negative होता तो क्या होता? This minus q charge will repel this one to the left and plus q charge will attract it to the left. So what will happen? It will be attracted and ultimately it will go and stick to this positive charge. So even if it is negative or it is positive, if placed at the midpoint of AB, so it will be unstable. वो वहाँ पे balanced नहीं रहेगा. Yes. So can we delete this option number B? Yes, sir. So this is Okay. this is not the right choice. Okay. Option A देखो अब, lies on the perpendicular bisector of line AB. So the line AB is this line. Perpendicular bisector is already drawn with green color. ठीक है. So we will place a positive charge on this perpendicular bisector at some arbitrary point. What are the forces on this point charge? Are they balanced or are they unbalanced, beta? This will be, the forces are unbalanced. The plus q charge will repel it and the minus q charge will attract it, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था आपका. तो क्या होगा? देयर इज सम नेट फोर्स, तो इट विल मूव. यस बेटा, इट इज Yes, sir. अनस्टेबल. अगर इसको मैं रिप्लेस करके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखूंगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा खाली. तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस चार्ज एंड इट विल बी रिपेल्ड बाय दिस माइनस क्यू चार्ज. तो मोशन का डायरेक्शन खाली बदल गया, बट इट इज अनस्टेबल ओनली. ठीक है, जहां भी जितना भी दूर आप इसको रख दो, तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे भी अनस्टेबल था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर एक पॉइंट पे भी अनस्टेबल ही रहेगा. तो कैन वी ओमिट ऑप्शन नंबर ए? Yes. So option A cannot be our right choice. So option A is also wrong. Option B is also wrong. Lies to the left of A. Can this positive or negative charge be placed to the left of A? Left of A means somewhere in this area to the left of A. ठीक है? So I am placing this negative charge to the left of A. ठीक है? तो मैंने क्या किया? I am placing this negative charge to the left of A. This negative charge is placed. Are the forces acting on this charge balanced or unbalanced? Just let me know. Balanced. Unbalanced, beta, unbalanced. Why? देखो, just looking at the problem. Let this charge be minus q. Yes, beta. So there will be some attractive force acting on this charge due to charge plus q. Yes. And there is some repulsive force acting on this charge due to minus q. Yes. Let's calculate them. Suppose I am just assuming that the distance between these two charges are this r and this is also r. Let the distance of separation between this plus q and minus q is 2r, and this minus q charge is placed at a distance x from the point A.
x to the left of point A, ठीक है. अब अप्लाई द कूलम्स लॉ, आप अप्लाई करो, जस्ट ट्राई टू अप्लाई. फॉर द माइनस q चार्ज टू बी बैलेंस्ड, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैव टू बी इक्वल, है ना भाई. these two forces have to be equal in magnitudes, that's why F net force on the minus q charge will become 0, and then only we can say that this is balanced. Yes. तो अभी क्या करेंगे, we will try to find out F attractive and F रिपल्सिव. ये F अट्रैक्टिव हो गया और दूसरा हो गया, इसको F अट्रैक्टिव क्या बोल रहे हैं, इसको F1 बोल देते हैं, F1 बोल देते हैं जिसको अट्रैक्टिव है, और F2 बोला जो रिपल्सिव है. F1 एंड F2 हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 बेटा, K मीडियम को बोल दिया, K मीडियम इज सेम, तो K Q1 फर्स्ट चार्ज कितना है बेटा आपका, मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं ना, एक का नेगेटिव आएगा एक का पॉजिटिव आएगा, तो उनका डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा सिंस, क्योंकि एक चलो रख लेता हूँ फिर आपको बाद में बता देता हूँ. F1 का वैल्यू बताओ, फर्स्ट चार्ज इज प्लस Q, सेकेंड इज माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, x स्क्वायर. यस, दिस इज F1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और F2 निकालें तो F2 इज K, फर्स्ट चार्ज इज minus q, second charge is minus small q, divided by x plus 2r square. Distance between these minus q and minus capital Q is x plus 2r square. तो these two forces have to be equal. अगर ये equal हो पाए तो हम बोल सकते हैं कि this minus q charge can be placed to the left of A. ठीक है, तो we will equate them and try to find out the value of x. और अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, if x comes out to be positive, then we can definitely say that कि according to our assumption the charge can be placed to the left of A, right? तो इक्वेट करो बेटा दोनों को और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो इसका मतलब हुआ के क्यू माइनस के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू के क्यू कैपिटल Q अपॉन x प्लस 2r का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि x कैन नॉट बी पॉजिटिव. दिख पाया? Yes, sir. यहाँ से आपको दो चीजें दिखेंगी, x कैन नॉट बी पॉजिटिव, ओह शिट मेरा टैब बंद हो गया. तो x कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड 2r कैन नॉट बी, 2r कम्स आउट टू बी 0. इस इक्वेशन को ना अभी मैं नोट शेयर करूंगा, आप इसको सॉल्व करना, इसको फर्दर सॉल्व करना. आपको